welcome to my channel again. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, just we are going to cover different questions from the infinite integral, okay, for the JEE main and advanced level exams, okay. So as you all know that actually this exam date is coming soon. So I think all of my students are taking the preparations very religiously and very attentively also. So if you have any kind of queries, if you have any kind of questions regarding that exams, that you can ask me in the comment section. Just I will try my best to give you the answers, proper answers. And just regarding my solutions and regarding whatever the actually this questions and the solutions are being provided in my channel, just you have to practice this type of questions purportedly so that you can face the various questions, the various things in the exams as well. Okay, so very good afternoon to all my students. Okay, so this in this video just we are going to cover some questions which are very important for the main exams. Okay, and these are all the previous year's questions. Just I have collected these questions, and now just where I am going to discuss this type of questions, these questions which are very important for the entrance level. Okay, so just write the first one, indefinite integral. Just write the first question. If you like my videos, if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel so that this channel name is grown up, and my channel and this everything will be the well known, okay, among the students community. Okay, just try as so much as possible for making my channel successful. Okay, so just write the first question. Integration sine x by sine x minus alpha, sine x minus alpha dx. This question came in 2004. Okay, so very important question. So just remember this thing. Just you can see in the numerator part sin x term is there. Sin x term is there. So I think regarding the sin x and in the denominator part sin x minus alpha term is there. Okay, so I think if you want to solve this type of questions, then you need to introduce some terms here. I think you have to rearrange the numerator part so that you will supposed to get different actually the different structure from the given question as well. Okay, so this sin x can be written as sin x minus alpha plus alpha, I think. Okay, why I am writing this line like this? Because if you write this x term just like that, then sin a plus b formula will be used. If you use sin a plus b formula, then I think sin x minus alpha this type क्यों लोगो होय चले कैसे करें होय किधर गया बाबा सेट वेरी मच वाह वेरी गुड है चिल्ली दे बना पिट्टी खाबे So here sin a plus b, because actually because of this thing just we have introduced this minus alpha and plus alpha. So I think x minus alpha should be chosen together, and I think for that we are using this thing sin a cos b plus cos a sin b whole divided by sin x minus alpha dx. Right? Now if you split the terms into two parts, then I think in this part sin x minus alpha will be cancelled, cos alpha dx will be there, and here I think sin alpha is constant and cot x minus alpha will be there. Okay, so here cos alpha will come out and integration dx means x. Okay, and plus sin alpha is constant and integration cot x minus alpha, integration cot x, what is the formula? Log mod sin x, okay, plus c. So this is the final answer. This is the final answer. This is the 2004 question. Okay, again another question which came in 2004.
in the another side actually. Okay, so now integration dx by cos x minus sin x, integration dx by cos x minus sin x. Okay, integration dx by cos x minus sin x, integration dx by cos x minus sin x. Very simple question. Okay, integration dx by cos x माइनस साइन एक्स, ये भी 2004 में आया था, है कि नहीं? अच्छा, अब ना यहां पर देखो इंटीग्रेशन dx by cos x minus sin x. Here we can use a formula. This if you have any sin x and cos x expression in the denominator part and the numerator part will be empty, then in place of sin x 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2, and in place of cos x 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. These formulas can be chosen, but another formation is there. We can choose this formation also, and I think it will be the easier one. Okay, so just see dx by, if you multiply root 2, 1 by root 2 cos x minus 1 by root 2 sin x. Okay, so 1 by root 2 is constant, so dx by 1 by root 2, in place of 1 by root 2 sin pi by 4, that is sin 45 degree can be written, and minus 1 by root 2, that means cos pi by 4 sin x. So 1 by root 2 dx by sin a cos b minus cos a sin b, that means sin a minus b, formula it is a minus b dx. So 1 by sin, I think it will be the cosec pi by 4 minus x dx. Now as you all know, integration cosec x dx formula क्या होता है? log mod cosec x minus cot x, ये formula होता है. So that means 1 by root 2 log mod cosec x minus cot x. Okay, and here what is the coefficient of x here? Minus 1. That means this minus 1 should be in the denominator part, and I think this should be given, minus should be given in the first part, plus c, it will be the answer. Okay, very simple. ये भी 2004 में आया था. Very simple question. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ जो 2005 में आया था. 2005. Okay, very simple question. Just write the question first. Okay, just pause करो वीडियो को, फिर उसके बाद देख लो. Very simple. Okay, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है मेन में, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, ये 2005 का क्वेश्चन है. log x minus 1 whole square, log x minus 1 by 1 plus log x whole square and whole square dx. So here you can see the very complicated structure it is. Now how to solve this part? This is the question actually. Okay, now most importantly, if you have this logarithmic expression, and just you can see the structure here, the very complicated structure, very Farragut type structure it is. Okay, so if you have this type of complicated structure regarding this log x, then one thing you can use, and that is log x can be substituted. Okay, just let's see what will be happen if I choose this log x as z. Okay, just let's check. Now log x equals to z, that means 1 by x dx equals to dz. Okay, so that means dx equals to x dz. X, what can I write? X e to the power z dz. Dx means this one. Okay, now just replace it. Log x minus 1 z minus 1 by 1 plus z square, right? Whole square it is, and then e to the power z dz, right? Then
-1 whole square by 1 plus z square whole square e to the power z dz. We can write. So in the numerator part, a minus b whole square formation can be used. Z square plus 1 minus 2z by 1 plus z square whole square e to the power z dz. Okay? Now, if you split this by this, this by this, that means e to the power z 1 by 1 plus z square plus minus 2z by 1 plus z square whole square dz. Can I write like this? Now, I think you have this expression. If you have this kind of integral e to the power x fx plus f dash x dx, then if you have this kind of expressions, then directly the answer can be written as e to the power fx plus c. Okay? So, now at first we have to determine whether it is in this formula or not. Whether this expression is in this form or not. Just we have to verify. Now, if you take this part as fx and this part is f dash x, now we have to verify. Is it true or not? Now 1 by 1 plus z square. Now if you differentiate this thing, now differentiate, okay, 1 plus z square, u by v formation, obviously, or you can write this line like this, 1 plus z square whole to the power minus 1. So if you choose this differentiation, so I think power formula minus 1 plus z square minus 1 and then twice z will be there. And dz is also there. Okay, so 2z by 1 plus z square whole to the power 2, and this minus n is also there. Now you can see 1 by 1 plus z square differentiation is what? This one. That means this part is fx and this part is f dash x. We can choose. So according to the given, according to this formation, the direct formula is e to the power z, e to the power z 1 by 1 plus z square plus c. Now replace the value of z here. E to the power log x by 1 plus log x whole square plus c. E to the power log x means x can be written 1 plus log x whole square plus c. This is the final answer. Okay? This is the 2005 question. 2005 में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है? हो गया? फिर और एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, वो भी 2008 में आया था. 2008 में आया था, है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें किया है. आप लोग ये होमवर्क में प्रैक्टिस में रखेंगे. ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन लिखो, √2 sin x by sin x minus pi by 4. ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, sin x by sin x minus अल्फा. अल्फा के जगह यहाँ पर पाई बाई 4 है. आप लोग यहाँ पर सिमिलरली प्रोसीड करेंगे, अल्फा के जगह पाई बाई 4 करेंगे, बस हो गया. एक ही x माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, उसके बाद साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे. ये 2008 में आया था. ये क्वेश्चन लिख कर रखो, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 इंटीग्रेशन 5 10x बाई 10x माइनस 2 है. ठीक है? और एक क्वेश्चन लिखो, इससे पहले और एक क्वेश्चन लिखो, ये 2007 में आया था. dx बाई cos x प्लस √3 sin x. dx बाई cos x प्लस √3 sin x. ठीक है? ये 2007 में आया था. ठीक है? अच्छा, अब जो है dx, एक काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाफ cos x प्लस √3 by 2 sin x. क्यों हम लोगों ने यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया है? कैसे पता चला हम लोग को यहां पर 2 मल्टीप्लाई करना है? हम लोग देख रहे हैं, देखो हाफ को हम लोग लिख सकते हैं sin पाई बाई 6 sin 30 cos x प्लस √3 by 2 को हम लोग cos पाई बाई
6 लिख सकते हैं। देखो तो साइन ए प्लस बी फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सब फॉर्मेशन जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि नहीं मुझे ये फॉर्मेशन यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो दैट मीन्स हाफ dx बाई, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी। तो बस हाफ ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए प्लस बी। अब कोसेक एक्स का फॉर्मूला तो हम लोग पहले से जानते हैं, हाफ लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस द आंसर है कि नहीं। ठीक है, सो वेरी सिंपल है कि नहीं। बहुत मजा आता है ये सब करने में, है ये सब क्वेश्चन जो कर रहे हैं बहुत मजा आता है कि नहीं। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो है करेंगे यहां से। ठीक है, फिर 2012 में आया था एक क्वेश्चन, वो लिखिए 2012 में आया था। लिखो इंटीग्रेशन 5 tan x बाई 10x माइनस 2 dx। ठीक है, 5 tan x बाई 10x माइनस 2 dx। अब इसको कैसे करें, 5 tan x दिया तो ये मुझे यहाँ पर आइदर वी हैव टू एक्सप्रेस दिस 10x इन द फॉर्म ऑफ sin x and cos x, or the another option is also there, and that is if you substitute 10x as z, if you substitute 10x as z, then what will be happen? Just check, let's check क्या होता है देख लेते हैं। क्योंकि 10x है तो 10x को तो z सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 10x को sec square x dx equals to dz, it means dx equals to dz by sec square x means 1 plus 10 square x dz by 1 plus z square। ओके, लिख सकते हैं इसे। सो 5z by z minus 2 into 1 by 1 plus z square, dz भी है। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। सो यहां पर क्या आ रहा है, 5 तो बाहर रख दो, z dz by z minus 2 z square plus 1। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में आ गया ना, है कौन सा फॉर्मेशन बोलो तो पार्शियल फ्रैक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा फॉर्मेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स माइनस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ऐसा अगर फॉर्मेशन है a बाई एक्स माइनस ए, और इधर बी एक्स प्लस सी बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इस टाइप का फॉर्मेशन पार्शियली आपको एक्सप्रेस करना है कि नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है यहाँ पर हम लोग को, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन हियर, राइट। कुछ है ऑप्शन और आपके पास? ओके, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। ओके, नाउ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। नाउ 5, अच्छा एक काम करते हैं, क्या है एक्सप्रेशन, देखो z बाई z माइनस 2 फिर जेड स्क्वायर प्लस 1, सो a बाई z माइनस 2 बी जेड प्लस सी बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका अगर मैं यहां पर एलसीएम करूं, z माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 1, ये होता है a इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये होता है बी जेड प्लस सी जेड माइनस 2, और इधर z बाई z माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू a जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी जेड प्लस सी जेड माइनस 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया है कि नहीं। तो यहां पर मुझे तो पहले
एबीसी का वैल्यू निकालना है। अब एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर जेड का वैल्यूज यहां पर थोड़ा कंसीडर, वी हैव टू कंसीडर सम वैल्यूज ऑफ जेड सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी एज वेल। इफ z equals to 2, then I think this part will be 0. The value of a can be found. So 2 equals to a into 2 square plus 1. और ये एक्सप्रेशन तो देखो पूरा 0 हो जाएगा, 2 minus 2 0. So that means a यहाँ पर 4 5, that means 2 by 5. a का वैल्यू क्या मिला? 2 by 5 है क्या नहीं? अब z equals to, एक काम करते हैं 0 पुट करते हैं, तो z equals to 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 0 equals to a into 0 plus 1, that means 1. bz ये पार्ट 0 हो जाएगा, c रह जाएगा, यहाँ पर -2 रह जाएगा, है कि नहीं? a का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल के रखा है यहाँ पर, तो 2 by 5, 0 equals to 2 by 5 minus 2c. That means minus 2c equals to minus 2 by 5. Minus minus cancel, 2 to cancel, c equals to 1 by 5. c equals to क्या है? 1 by 5. Now अब सिर्फ बाकी रह गया b का वैल्यू। तो b का वैल्यू यहां पर निकालने के लिए कुछ भी तुम यहां पर पुट करो, तो यहां पर मन में जो आए पुट कर दो। z का वैल्यू 1 पुट कर दो, z का वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। z का वैल्यू 1, इफ z इक्वल्स टू 1 क्या आ रहा है देखो तो एक्सप्रेशन, ये 1 इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस b प्लस c और इधर -1। 1 इक्वल्स टू 2 इंटू a का वैल्यू मुझे पता है 2 by 5 पुट कर दो, b का तो नहीं पता है, c का वैल्यू तो पता है 1 by 5 इंटू -1, so that means 1 equals to 4 by 5 plus minus b minus 1 by 5. So that means minus b equals to 1 minus 4 by 5 plus 1 by 5 minus b equals to क्या होता है? हाँ? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सो b इक्वल्स टू 5 minus 4 plus 1 by 5. That means 6. 6 minus 4, 2 by 5. That means b equals to minus 2 by 5. b equals to what? Minus 2 by 5. So that means अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में abc का वैल्यू बिठा दूं, ओके, नाउ फ्रॉम 1 में जाओ, ओके, abc का वैल्यू एबीसी का वैल्यू यहां पर बिठा दो। सो z बाई z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 1 बिठा दो यहां पर, a बाई एक्स माइनस z माइनस 2, a मतलब क्या है 2 बाई 5, 2 बाई 5 इंटू 1 बाई z माइनस 2 प्लस b मतलब माइनस 2 बाई 5 इंटू z प्लस c मीन्स 1 बाई 5 बाई z स्क्वायर प्लस 1, ये होता है कि नहीं? तो बस ये इंटीग्रेशन में बस डायरेक्ट बिठा दो। सो इंटीग्रेशन 2 बाई 5 1 बाई z माइनस 2 dz प्लस माइनस 2 बाई 5 z प्लस 1 बाई 5 बाई z स्क्वायर प्लस 1 dz। सो 2 बाई 5 ये क्या होता है? लॉग मॉड z माइनस 2 निकल जाता है, प्लस यहां पर एक काम करते हैं, पार्ट कर देते हैं, माइनस 2 बाई 5 बाहर निकाल के z dz बाई z स्क्वायर प्लस 1, ये है पहला पार्ट, प्लस 1 बाई 5 करके dz बाई z स्क्वायर प्लस 1, ये होता है दूसरा पार्ट कर दिया हम लोगों ने, स्प्लिट कर दिया, क्या होता है? तो यहां पर 2 बाई 5 लॉग z माइनस 2 माइनस 2 बाई 5। अच्छा यहां पर देखो
एक काम करते हैं, 2 को इधर 1 रख के 2z अंदर ही रख देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, z² प्लस 1 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, z² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2z dz, तो 2z dz ऊपर है क्या ना, ठीक है। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन dp बाई p लिख सकते हैं, और इधर 1/5 तो है ही tan इनवर्स z, ठीक है। हो गया। सो 2/5 log z, मतलब हम लोगों ने क्या लिया था, z मतलब क्या सब्स्टिट्यूट किया था हम लोगों ने, है 10x को, है नी। तो यहां पर 10x माइनस 2 माइनस 2/5 log p, log mod p, और इधर 1/5 tan इनवर्स z मीन्स 10x प्लस c। बस अब तो क्या, आप यहां पर जस्ट z का वैल्यूज रिप्लेस करना है, और क्या, और तो कुछ नहीं है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, 2/5 log 10x माइनस 2, 2/5 log p, p मीन्स हम लोगों ने यहां पर क्या, z² प्लस 1, z² प्लस 1, और इधर प्लस 1/5 tan इनवर्स, और 10x कैंसिल, सिर्फ x रहेगा, प्लस c। 2/5 log 10x माइनस 2 माइनस log z² मीन्स 10² x प्लस 1, ओके। ब्रैकेट क्लोज कर दो, और ये x/5 प्लस c, ऐसे रख दो आंसर, ओके। थोड़ा लंबा हो गया है, ओके। तो वेरी सिंपल, आपको इस टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ठीक तरह से, ओके। फिर और एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन लिखो, dx बाई 2016 में आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, dx बाई लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन dx बाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2016 का है ये क्वेश्चन, ओके। dx बाई cos क्यूब x रूट 2 sin twice x। अब sin twice x दिखाई दे रहा है, तो आपको तो फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, cos क्यूब x, यहां पर तो 4 sin x cos x, ये तो करना ही है। sin 2x का 2 sin x cos x, आपको यहां पर क्वेश्चन में पहले से 2 है, 4 sin x cos x। अब क्या करना है, रूट भी है, रूट भी है, तो हम लोग यहां पर क्या करें, क्या कर सकते हैं बोलो, एक काम करते हैं, dx बाई cos क्यूब x 4 sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना ऐसे। ये cos स्क्वायर x रूट के बाहर आ जाएगा, तो cos x होके बाहर आएगा, तो दैट मीन्स cos टू द पावर 4x हो जाएगा, इधर 4 tan x हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर 4 भी रूट के बाहर आ जाएगा, 1/2 करके बाहर निकाल दो, और इधर sec टू द पावर 4x, और नीचे होगा रूट 10x, लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो थोड़ा बहुत तो सिंपल हो गया। अब हाफ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्यों लिखा, क्योंकि 10x है, 10x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है नहीं, dx। अब 10x को अगर मैं z सब्स्टिट्यूट करूं, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz, दैट मीन्स हाफ। इस पार्ट पे तो हम लोग dz लिख सकते हैं, और ये sec स्क्वायर x मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर x, दैट मीन्स 1 प्लस z टू द पावर 4, है कि नहीं। और इधर रूट 10x, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं आप,
रूट z लिखेंगे, क्या कर सकते हैं, रूट z लिखेंगे। अब तो स्प्लिट कर दो, अब तो सिंपल हो गया यहाँ पर 1/√z dz प्लस हाफ z टू द पावर 4/√z dz 1/2 z टू द पावर माइनस हाफ dz प्लस हाफ z टू द पावर 4 माइनस हाफ dz हाफ z टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 हाफ z टू द पावर 7 बाई, ये क्या होता है 7/2 है नहीं, यस। सो यहां पर हो जाएगा हाफ z टू द पावर हाफ बाई हाफ, है कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा हाफ z टू द पावर 7/2 प्लस 1 बाई 7/2 प्लस 1 प्लस c। बस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रूट z हम लोगों ने क्या लिया था √10x प्लस यहाँ पर 9 1/9 रह जाएगा z टू द पावर 9/2 प्लस c, दैट मीन्स √10x प्लस 1/9 10x टू द पावर 9/2 प्लस c, ये होता है आंसर, है कि नहीं। ठीक है, कर सकते ना ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, dx बाई आ गया। फिर ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, अभी जो करेंगे dx बाई राइट dx बाई 1 प्लस √x dx बाई 1 प्लस √x रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहां पर तो देखो dx बाई 1 प्लस √x तो करेंगे, है कि नहीं। अब रूट के अंदर अगर मैं x एक कॉमन लो 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर dx बाई 1 प्लस √x, ये x को बाहर निकाल दे तो ऐसे हो जाएगा √1 माइनस एक्स। लेट √x इक्वल्स टू z, दैट मीन्स 1/2 √x dx इक्वल्स टू dz, तो 1/√x dx इक्वल्स टू 2 इंटू dz। सो दैट मीन्स ये जो पार्ट है लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू dz बाई 1 प्लस z, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा है। अब एक एक्सप्रेशन हम लोग के पास है, जैसे dx बाई, अगर आपके पास ऐसा है, सपोज कोई भी ऐसा कुछ है x प्लस ए और रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x प्लस ए को हम लोग 1/z सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है कि नहीं। एक फॉर्मेशन है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो लेट 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 1/p ले सकते हैं। रूट के अंदर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, रूट के बाहर लिनियर फॉर्मेशन है, तब लिनियर जो फॉर्मेशन है उसको आप 1/p या फिर 1/ कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये एक फॉर्मेशन है। अगर ये फॉर्मेशन हम लोग यूज ना करें तो हम लोग को लेंथी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब टाइम तो इतना होगा नहीं आपके पास कि आप लेंथी प्रोसेस में जाए, है कि नहीं। कुछ इजी ट्रिक भी है, इजी ट्रिक भी है, याद रखने का इजी ट्रिक भी है। ट्रिक हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। ट्रिक हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग डिटेल सीखेंगे सब कुछ, उसके बाद ट्रिक सीखना है। पहले से ही ट्रिक नहीं सीखना है,
ठीक है, ट्रिक जो है कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, हर यूनिवर्सल वे में ये सब ट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं है। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तभी आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिक है क्या नहीं। हम लोग ट्रिक बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो यहां पर dz इक्वल्स टू -1/p² हो जाएगा dp, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये चीज अगर यहां पर यूज करें, देखो तो क्या होता है। ना 2 तो बाहर, dz मीन्स -1/p² dp बाई dz की जगह बिठा दिया, 1 प्लस जेड को हम लोगों ने क्या लिया था 1/p, रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस z² मीन्स 1/p -1 होल स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। हाँ देखो 2 इंटीग्रेशन, ये देखो 1/p तो इधर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ये माइनस बाहर निकाल दो, dp बाय एक p नीचे रह जाएगा, और इधर रूट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस, ये माइनस भी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में तोड़ दो, 1 माइनस p², हाँ -2 इंटू 1/p, फिर +1 इट इज -2 dp बाई रूट p भी है बाहर, 1 माइनस 1/p² माइनस +2/p -1, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन dp बाई, एक काम करते हैं यहां पर एक 1/p² कॉमन ले लेते हैं, p रूट के अंदर, ठीक है, 1/p² कॉमन लेते हैं, लेने के बाद क्या आएगा 2p -1 ऐसा आएगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स -2 dp, ये 1/p² रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/p, और रूट के अंदर 2p -1 रह जाएगा, p कैंसिल, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बन गया, देखो तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या बना, क्या गया, देखो -2 dp बाई रूट ओवर 2p -1, इट इज -2 इंटीग्रेशन 2p -1 to the power -12 dp, it is -2 2p -1 whole to the power -12 plus 1 by -12 plus 1 plus c। अब p के जगह में जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, p के जगह में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है कि नहीं, p के जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और फिर z आएगा, z के जगह भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपने लिया था यहां पर कैलकुलेशन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो ये सब कुछ मैंने मिटा दिया है, p की क्या लिया था, z क्या लिया था, यहां पर पूरा मिट गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप p के जगह z का एक्सप्रेशन बिठा दीजिए, फिर z के जगह जो आपने z लिया था, z आई थिंक √x को z लिया था, फिर z के जगह √x बिठा दीजिए, और मुझे जहां तक याद आ रहा है यहां पर 1/z को शायद 1 माइनस z, इसको शायद 1/p लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहां से कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, बस उसके बाद तो है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, ये 2017 का है क्वेश्चन, ठीक है, 2017 लिखो, 2017 का है, ठीक है। f ऑफ 3x - 4 by 3x + 4,
3x minus 4 by 3x plus 4 equals to x plus 2. Okay, and x not equals to minus 4 by 3. Okay, then integration fx dx equals to a log 1 minus x प्लस bx प्लस c. यहां पर आपको a b c का वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाना है उन लोगों को. ये कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C है ना, ये सब का वैल्यूज निकाल के दिखाना है उन लोगों को. और ये गिवन है कि नहीं. अच्छा, तो लिखो गिवन f of 3x minus 4 by 3x plus 4 equals to x plus 2. ये गिवन है. हम लोगों को तो चाहिए यहां पर f of x है कि नहीं. इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, f of x है, बट यहां पर तो f of x तो गिवन नहीं है. तो इसको यूज करके किसी तरह मुझे यहां पर f of x निकालना पड़ेगा. कैसे, देखो, लेट 3x minus 4 by 3x. कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको z ले सकते हैं हम लोग, एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है. फिर डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3xz प्लस 4z. ठीक है, तो यहां पर देखो x का टर्म्स जो जो है, देखो यहां पर 3x माइनस 3xz और देखो 4z प्लस 4, ये माइनस 4 को उधर लेके गए. अब x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3z 4z प्लस 4 है कि नहीं. तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4z प्लस 4 बाई 3 माइनस 3z. दैट मीन्स x इक्वल्स टू हम लोग ये लिख सकते हैं, है कि नहीं. ठीक है. सो इसको हम लोगों ने क्या लिया था, इसको हम लोगों ने क्या लिया था, z लिया था, है कि नहीं. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. सो f ऑफ z इक्वल्स टू, इस x के जगह में z का एक्सप्रेशन बैठेगा, है कि नहीं. तो दैट मीन्स क्या आएगा, 4z प्लस 4 बाई 3 माइनस 3z. अब इसके जगह मैंने z पुट कर दिया, तो ये तो x तो नहीं रहेगा ना, इस x के जगह में z का एक्सप्रेशन बिठाना पड़ेगा. तो देखो x का वैल्यू तो हम लोगों ने z के एक्सप्रेशन रिलेटेड तो वैल्यू निकाल के रखा है. तो देखो प्लस 2, तो f ऑफ z इक्वल्स टू, एलसीएम करो, 4z प्लस 4 प्लस 6 माइनस 6z बाई 3 माइनस 3z. 4z इक्वल्स टू, देखो इधर 10 माइनस 2z बाई 3 माइनस 3z. देखो तो ऐसा है कि नहीं. तो अगर z का एक्सप्रेशन ऐसा आया तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x 10 माइनस z के जगह x रिप्लेस कर दो, 10 माइनस ट्वाइस x बाई 3 माइनस 3x हो गया. f ऑफ x आ गया, है कि नहीं. नाउ f ऑफ x dx निकालना है, f ऑफ x dx. सो इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, दैट मीन्स इंटीग्रेशन 10 माइनस ट्वाइस x बाई 3 माइनस 3x. इसका आंसर निकालना है. निकाल के देखो कितना आ रहा है कि नहीं. देखो कितना आ रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 4/3 क्यों दिया गया था क्वेश्चन में, क्योंकि इफ यू पुट x इक्वल्स टू माइनस 4/3 in the given function, then I think fx will be undefined, and that's why f not equals to minus 4/3. It is given in the question. So ऊपर जो न्यूमरेटर में अगर मैं 2 कॉमन लू, 5 माइनस एक्स, और नीचे अगर मैं 3 कॉमन लू, 1 माइनस एक्स dx, तो 2/3 को बाहर रख दो, ये पूरा ब्रैकेट मार दो, और ये 5/1 माइनस एक्स dx एक है फर्स्ट पार्ट, और माइनस देके x बाई 1 माइनस एक्स, ये दूसरा पार्ट है.
है कि नहीं? सो 2/3, 5 तो बाहर आ जाएगा, log mod 1 माइनस एक्स, और x के साथ कोफिशिएंट तो -1 है, दैट मींस सामने एक माइनस आएगा, दैट मींस बाई एक माइनस आएगा, -1, तो बाई -1 दैट मींस सामने ही अल्टीमेटली आएगा माइनस। फिर माइनस, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, देखो तो एक काम करते हैं, उसको इधर प्लस देके इधर माइनस रख देते हैं। तो देखो 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक +1 -1 ऐड कर दिया है कि नहीं? कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 2/3 -5 log mod 1 माइनस एक्स, क्योंकि आंसर तो देखो स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको देख के हम लोग मिला रहे हैं यहां पर। तो 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स dx, ये है फर्स्ट पार्ट, माइनस ये है 1 बाई एक्स माइनस एक्स dx, है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 2/3 -5 log mod 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x आएगा, इंटीग्रेशन dx मीन्स x, और माइनस ये भी log mod 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इधर प्लस सी तो है ही, प्लस सी तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा यहां से, नाउ यू कैन सी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, सी को बाहर रख दो यहां पर, ऐसे देखो यहां पर -10/3 log mod 1 माइनस एक्स, और यहां पर भी एक log mod 1 माइनस एक्स है, सामने क्या रहेगा 2/3, दैट मीन्स -2/3 log mod 1 माइनस एक्स, और इधर +2/3 x प्लस सी। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, -12/3 log mod 1 माइनस एक्स प्लस 2/3 x प्लस सी, दैट मीन्स -4 log mod 1 माइनस एक्स प्लस 2/3 x प्लस सी, दैट मीन्स here a equals to -4, b equals to 2/3, ठीक है। और c तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंडिफरेंट इंटीग्रल है, सी तो कांस्टेंट रहेगा, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो है 2018 में भी आया था, ठीक है। वो 2018 वाला क्वेश्चन जो है वो लिख के रखो, 2018 वाला ये आप लोग करेंगे, क्या है यहां पर लिखो, f of x minus 4 by x plus 2, f of x minus 4 by x plus 2 equals to, ये क्वेश्चन लिख रखो, आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, 2x plus 1, 2x plus 1, then f of x dx का आंसर आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन देखो यहां पर इसका आंसर दिया गया था, यहां पर निकालना है, स्ट्रक्चर सेम ही है, आपको 2018 में ये आया था, ये आप लोग सोल्व करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से वेरियस क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, डब्ल्यू मेन एडवांस रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स का आईटी लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मेन का गया है, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, जस्ट लेक्चर को आपको ठीक तरह से देखना है, 1 by 1, ओके। वेरियस सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, just see the solutions and see the lectures as well fully, and I think in the JEE main and advanced exams you will not face the problems as well, okay। so इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इफ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, ओके, as so much as possible। so bye, जय हिंद।